Good morning, student. Welcome again in my class. Our topic was already completed on natural disasters. Today, we will do some activities on the page number given there, 226 checkpoints. What is the meaning of checkpoints? Yes, what we had learned from the chapter, जो चैप्टर दिया था उससे हमने क्या क्या चीजें सीखी, क्या क्या हमको समझ में आया. दैट इज दैट मेन पॉइंट्स वी विल चेक. दैट इज चेक पॉइंट्स यानी चेक आवर ब्रेन. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट. फर्स्ट वन, सर्कल द करेक्ट आंसर. Circle the correct answer. That means given 2 or 3 answers, but which one is correct? We will circle on that correct answer. Okay. Here is given the crust or the upper layer. What is the meaning of crust? You know very well. Upper layer of the earth is known as crust. Where we live on the earth, जहाँ हम अर्थ पे रहते हैं उस लेयर को हम क्रस्ट बोलते हैं. Because in our earth there are 4 layers. Inner layer, that means first layer is core, C-O-R-E, core. Second one is, very good, outer core. Third layer name is mantle, M-A-N-T-L-E, mantle. And fourth and last layer of the earth, that is C-R-U-S-T, crust, where we live on the land. That is crust. The crust or the upper layer of the earth is made up of. Made up of means बनी हुई है. जो crust है, अर्थ की जो upper layer है, वो किन चीजों से बनी है? You know very well. But again we will let us see how many answers are given there. Here is given 1, 2, 3 answers is given there. First one, plates. Second, stones. Third, soil. बनी तो भाई सबसे है, बट हम किसको देखेंगे? फर्स्ट इज सॉइल. मिट्टी से बनी है. मिट्टी तो है ऑलरेडी, यू नो वेरी वेल. हमारा जो क्रस्ट है, जहां पर हम रहते हैं, जिस जमीन पर रहते हैं, उसमें सॉइल है. इट्स ओके. देन स्टोन्स, ऑफ कोर्स, so many stones are there on the upper layer of the earth, that is on crust. Plates, मेन प्लेट्स हैं, और यही प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं, what will happen? Of course, earthquake will happen. वहां पे earthquake होगा, यानी earthquake के जो waves आएंगे हमको इसी प्लेट्स के थ्रू पता चलते हैं. That means the crust or the upper layer of the earth is made up of not only stones or soil, it is made up of plates. And question is given there, circle. Then we will circle the correct answer, plates. Okay, हमारी जो upper layer बनी है वो plates से बनी है. Please remember, check point है, that means हम हमारे brain को check कर रहे हैं. Please remember all these points. It may be come in fill in the blanks, true, false, match the column, or give in the one word answer or in short answer. Question will make कैसे बनेगा? The crust layer or the upper layer of the earth is known as, which name is given there, and किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? The upper layer of the earth is crust and it is made up of plates. Okay, this is the answer. इस टाइप की क्वेश्चन इस सेंटेंस से बनकर आपको एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं, और comes in your test also, that is in periodic 2 also. So please be remember, सिर्फ हमको ऐसे मान के नहीं चलना है कि सर्कल द आंसर है. 3 answers will give there and we will select a correct answer and circle it. No, जरूरी नहीं है कि ये जो आंसर्स हैं, ये जो ऑप्शंस हैं, आपको वहां पे भी मिले. इससे क्वेश्चंस भी बन सकता है. अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज विच नेम, एंड it is made up of which plates or soil or stones.
तो आपको उसको लिखना पड़ेगा द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट एंड इट इज मेड अप ऑफ प्लेट्स. क्लियर? देन सेकेंड, व्हेन देयर इज हैवी रेन, जब कहीं पर बहुत ज्यादा भारी बारिश होती है. हैवी रेन दैट मीन्स ऐसे नहीं कि बस एक आध घंटा हो गई, नो, कंटिन्यूसली 1 आवर 2 आवर, कंटिन्यूसली आवर्स, 1-2 घंटा नहीं, 1-2 घंटे में तो हैवी रेन नहीं माना जाता है. कब? जब कंटिन्यूस बिना रुके एक समान बारिश गिरे, बहुत तेजी से गिरे, ना कि स्लो कि कुछ देर गिरी और बंद हो गई. इट इज नॉट ए हैवी रेन. हैवी रेन दैट मीन्स कंटिन्यूस पानी गिरना बिना रुके, दैट इज हैवी रेन. इट मे कॉज, तो इसके कारण क्या होगा? अर्थक्वेक. अर्थक्वेक होगा हैवी रेन फॉलिंग से. नो. देन फ्लड. फ्लड हो सकता है. या साइक्लोन. साइक्लोन हो सकता है. मे बी. यस और नो? सम आर सेइंग यस मिस साइक्लोन विल हैपन देयर. नो बेटा. अर्थक्वेक यानी भूकंप तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि अर्थक्वेक का रीजन है कहां पर? जो हमारा फर्स्ट लेयर है अर्थ का कोर, वहां पे कुछ हलचल होगी तो अर्थक्वेक आएगा. साइक्लोन कब आएंगे? साइक्लोन्स कब आते हैं? जब सन, मून और एक और क्या, अर्थ, हमारे कुछ वेव्स उसमें आते, जैसे टाइडल वेव्स में देखा था या साइक्लोन्स में देखा तो तूफान कैसे उठते हैं, उसके कारण आते हैं. बट फ्लड, बाढ़, बाढ़ सिर्फ हैवी रेन फॉलिंग से ही आती है. दैट इज वाई जहां हैवी रेन फॉलिंग आएगा, when there is heavy rain, it may cause earthquake. No. Cyclone, definitely not. Then flood is there. Then we will circle this answer. Okay. Third one, the magnitude of tsunami. Here is T silent. Tsunami में T silent है. Tsunami, ये जो वर्ड है वो जापानी वर्ड है. इसको हमने यहाँ पे लिखने में, when we will write the spelling of tsunami, we will write T, but when we will pronounce it, T is silent in this word. Okay. Tsunami, tidal waves or earthquake is measured on the Richter scale. Okay. The magnitude of, मतलब वो कितने मैग्नीट्यूड पे आया था, उसकी गति क्या रही होगी, किसकी, is measured on the Richter scale. Richter scale, what is the meaning of Richter scale? Richter scale को हम क्या यूज करते हैं? Richter scale का, Richter scale का यूज होता है where there is earthquake, जहाँ पे earthquake होता है वहां पे हम Richter scale का यूज earthquake का मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. That means Richter scale किसने बनाया था? What was the name of that particular scientist name? Of course, Charles Richter. चार्ल्स रिचर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया, एक ऐसा स्केल बनाया, इंस्ट्रूमेंट बनाया, जिससे कि हम अर्थक्वेक का मेजरमेंट ले सके, उसका मैग्नीट्यूड दे सके कि कितने गति से आ रहा है, कितने उसके वेव्स, कितने कितने सेकंड, कितने कितने मिनट्स के बाद आने वाले हैं. ये सब चेक करने के लिए चार्ल्स रिचर नाम के साइंटिस्ट ने रिचर स्केल बनाई, और वहां अर्थक्वेक के लिए, ना कि सुनामी को मेजर करने के लिए और टाइडल वेव्स को मेजर करने के लिए. अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है, कितने स्केल पे वहां अर्थक्वेक आ रहा है या कितने स्केल तक वो आके गया, मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रूमेंट होता है गोल और सर्कल. मैंने आपसे कहा था कि उसको गूगल पे सर्च करना. दैट वाज योर होमवर्क ऑल्सो. एंड जस्ट सी हाउ टू ड्रॉ द स्केल्स ऑन द पेपर. उसमें एक पेन लगा होता है, एक बहुत बड़ा पेन, मतलब सिंपल हमारा वाला पेन नहीं, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पेन. उसमें इंक होती है अलग से, और वो कंटिन्यूस जैसे जैसे अर्थक्वेक आता है, लाइक अ पेंडुलम. पेंडुलम मतलब एक ऐसी चीज लटकी हुई जो कंटिन्यूस उसके मैग्नीट्यूड को पेपर पे क्या करती जाती है. जैसे हमारा, अगर आपने देखा होगा किसी पेशेंट का ईसीजी होता है ना, उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि भाई इसका ईसीजी हो जाए. ईसीजी करते हैं तो क्या होता है, एक साइड मशीन रखी हुई होती है, एक साइड पेशेंट होता है, एंड व्हाट विल हैपन, उसको कुछ जेल लगा के वो यहाँ पे मशीन लगा दी जाती है और बटन ऑन करते हैं.
क्या होता है, करंट नहीं आता है भाई उसमें, अंदर से हमारी जो हार्ट बीट है या हमारे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे हार्ट में, तो वो पूरा एक पेपर पे रिकॉर्ड हो जाता है। एक ऐसी स्लिप देखी होगी, अगर आपने देखी होगी कभी, तो ऐसे आपको कुछ उसमें वेव्स दिखाई देते हैं। ओके, और यहाँ पे कैसी लाइंस होती है उसमें, ये हमारी ईसीजी रिपोर्ट होती है हमारी बॉडी की। अगर हमारे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो आपको ऐसे नीचे जाती हुई दिखाई देती है। इफ देयर इज नो प्रॉब्लम और हार्ट इज गुड, देयर इज नो कोलेस्ट्रॉल और नो प्रॉब्लम क्रिएट इन अवर हार्ट, दैट इज, तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे होता है, जैसे ही उन्होंने हमारे हार्ट के आसपास वो इंस्ट्रूमेंट को लगाया और बटन ऑन करा, तो जो मशीन होती है साइड में, है ना, ये मशीन जो होती है, यहाँ पे जो बटन्स होते हैं वो मेजर करती है, और एक साइड में ये पेपर धीरे 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 करके निकलते जाता है, और उस पे जो स्केल आती है, ये जो स्केल आ रही है वो एक मशीन के द्वारा ऐसे पेपर पर टाइप होती जाती है। सेम ऐसे ही हमारे चार्ल्स रिचर ने अर्थक्वेक को, मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए बनाया है रिचर स्केल, और उसका भी ऐसे ही आता है, बट वो एक पेंडुलम लाइक, उसमें पेंडुलम जैसा एक पेन होता है बड़ा सा, और वो पेपर पे ऐसे ही पूरा मैग्नीट्यूड मेजर करता है। उसके अकॉर्डिंगली साइंटिस्ट विल से हाउ मेनी मैग्नीट्यूड वाज देयर वाज अर्थक्वेक। ओके, दैट इज क्लियर, है ना। ईसीजी रिपोर्ट अगर किसी ने देखी है, तो जो हार्ट पेशेंट होते हैं या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, सडनली चेस्ट पेन होता है, तो उसके लिए भी ऐसी ईसीजी रिपोर्ट्स होती हैं। तो हम छोटा सा एक एग्जांपल उसको लेके देख सकते हैं, कैसे वो रिचर स्केल का इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट होगा और वो कैसे मेजर करता होगा। तो एग्जांपल हम इसको देख सकते हैं, यहाँ ऐसा एक स्केल होता है और वो दिखाई देता है। ओके, क्लियर। देन थर्ड वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सुनामी, टाइडल वेव्स और अर्थक्वेक, दैट इज अर्थक्वेक। हम अर्थक्वेक का मेजरमेंट करते हैं ऑन रिचर स्केल। बाय द हेल्प ऑफ रिचर स्केल वी विल measurement of magnitude of an earthquake. Clear? Now, in your book already given page number 200, that is 27, 227 पे भी आपको कुछ दिए हुए हैं for your remembering, आपके याद के लिए there is given words to know. Okay, words to know, words to know. What is the given of words to know? कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके थ्रू हमें शॉर्ट में और बहुत अच्छे से हमको जानकारी मिलती है। फर्स्ट वन इज गिवन देयर, दैट इज अर्थक्वेक। ओके, फर्स्ट वन अर्थक्वेक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थक्वेक? वी रिमेंबर वर्ड्स टू नो, आपको याद करना है, लर्न करना है। राइट 5 to 10 times in your rough register, because some questions will come from your words to know also. Here is given a sudden shaking of the earth, a sudden shaking of the earth, a sudden shaking of the ground, of the ground. Ground means, what is the meaning of ground? जहां हम लोग खेलते हैं, प्ले करते हैं? नो, डेफिनेटली नॉट। ग्राउंड मीन्स लैंड, जमीन या अर्थ। ग्राउंड caused by which one? Caused by a sudden shaking. Sudden means अचानक से। ओके, अचानक से कुछ शेक होना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग अ बॉटल एंड जस्ट शेक इट, उसको हलाना, हलना, अचानक से हलना ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड का अचानक से हलना, कॉज्ड बाय वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस यू नो वेरी वेल, वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस यानी उसमें तरंग आना, वाइब्रेशंस डीप इनसाइड द अर्थ, डीप इनसाइड द अर्थ। Okay, a sudden shaking of the ground. ग्राउंड पे, ग्राउंड का अचानक से हलना,
कॉज्ड बाय, इसके कारण क्या होता है? वाइब्रेशंस डीप इनसाइड द अर्थ। किसके कारण? अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस आ रहे हैं, जिसके कारण अचानक से धरती में हलचल होना या जमीन का हलना या ग्राउंड में कुछ हलचल महसूस होना, इट इज कॉल्ड अ अर्थक्वेक। ओके, राइट दिस सेंटेंस in words to know already given on the page number 227. Okay, second one is given there. Which one is second given there? Cyclone. Okay, cyclone. What is the meaning of cyclone? A violent storm in which a violent storm, कैसे स्टॉर्म आना? तूफान आना। अ वायलेंट स्टॉर्म इन विच, किसमें, कहाँ पे आते हैं ऐसे तूफान? यू नो वेरी वेल बिकॉज वी हैड लर्न इन प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लोन। स्टॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड्स ब्लो, which in which strong winds blow. Blow means बहना, बहना means हवा का बहना, है ना? हवा जो चलती है उसको हम ब्लो करते हैं, उसको फ्लो नहीं करते हैं। कुछ लिक्विड चीज होती है तो हम उसको फ्लो करेंगे, FLOW, फ्लो, फ्लू, फ्लोन, लाइक दैट। बट हवा को हम देख नहीं सकते बट महसूस कर सकते हैं, तो हवा क्या होती है? ब्लो होती है, BLOW, ब्लो। A violent storm in which strong winds blow. Strong winds means बहुत तेज हवाएं चलना, बहुत तेज हवाओं का बहना। In which blow with very heavy rains. With very heavy rains. आपने अधिकतर देखा होगा ऐसे साइक्लोन्स जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है और सडनली बारिश के साथ में बहुत बारिश भी हो रही है और साथ में बहुत तेज स्ट्रॉन्ग वाइंड्स ब्लो बसते हैं, बहुत तेज हवाएं भी चल रही थी, तो क्या होगा? अ वायलेंट स्टॉर्म, दैट मीन्स साइक्लोन विल कम देयर। ओके, ऑल्सो राइट साइक्लोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लोन? व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लोन? Write the definition of cyclone, just like that question will come in your exam also. Third one is given there. There is famine. Famine or famine. Okay? FAMINE. Famine. What do you mean by famine? Lack of food during lack of food. Food की कमी हो जाना, यानी भोजन की कमी हो जाना। इन विच कंडीशन? लैक ऑफ फूड, डेफिनेटली ड्रॉट्स कंडीशन और फ्लड्स कंडीशन। वेयर देयर इज अ हैवी रेनफॉल, फ्लड्स विल कम देयर। वेयर देयर इज नो रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम, ड्रॉट विल कम देयर। ओके, इन दैट कंडीशन, इन ड्रॉट कंडीशन और फ्लड कंडीशन, those conditions will lack of food. Lack of food during a long period of long period of which one? Long period of time in a region. Long period of time in a region. किसी एक जगह पर ऐसे बहुत ज्यादा समय के लिए सूखा पड़ जाना या फिर उसके बाद में बहुत ज्यादा वहां पे बाढ़ आ जाना, इससे लाइफ की और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। एंड दोज प्लेसेस, उन जगहों पर जहां पे फ्लड है या ड्रॉट्स वाली कंडीशन है यानी सूखे वाली कंडीशन है, वहां पर क्या हो जाता है? फेमाइन हो जाता है, यानी लैक ऑफ फूड, भोजन की कमी हो जाती है। बिकॉज फसलें यानी क्रॉप्स पूरी नष्ट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं और उसके वजह से
क्रॉप्स नहीं होता है तो वहाँ पे वेजिटेबल्स या मसाले हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे बाढ़ आ रही है या सूखा पड़ रहा है, वो सब चीजें खत्म हो जाती है, लोगों के पास फूड की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है. दैट कंडीशन कॉल्ड इज फेमाइन. ओके, क्लियर? फर्स्ट वन, अर्थक्वेक, cyclone. What do you mean by famine, or what is the mean by famine? Write the definition of famine, like that questions will come in your exam. So please read all these words to know. आपके वर्ड्स दे रखे हैं मेन और इनको आपको याद करना है. इन नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, जो आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी आफ्टर 5th, 6th विल कम देयर, 7th विल कम देयर, तो ये वर्ड्स आपके लिए फिर उस टाइम नए नहीं लगेंगे. सो प्लीज read it, write it 4 to 5 or 10 times in your rough register and learn it. Okay, thank you. Have a wonderful day. Bye.